Assalamualaikum ji, this is your host Ehsan Sheikh. I welcome you all to yet another episode of Facebook Live Sessions with an amazing personality, and that's Mr. Ehsan Khan, all the way from Ukraine. He has joined us, and he is a computer lecturer. He's a lecturer of computer sciences at University of Customs and Finance, Ukraine, and he did his bachelor's from Newport University, California. सो एहसान साहब के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि ही हैज़ गॉट एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंसेस एंड ही इज़ अ लेक्चरर ओवर देयर and he has been providing his services to students and to the people out there for a long time. So ehsan sahab, बहुत शुक्रिया आपका. Really thankful to you for being with us today. It really is an honor to have you. मिस्टर एहसन शेख साहब, सर अस्सलाम वालेकुम एंड बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतनी ऑनर दी. और मैं सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस यूनिवर्सिटी कि आज उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया. और आई प्रॉमिस दैट मैं उनको सबको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा. और एंड तक ये वीडियो देखिए. और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे आइडियाज़ यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि हमारी जितनी भी यूथ है, खासकर स्पेशली पाकिस्तान के जो यूथ है जो आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में कोविड-19 के बाद इस चीज़ को फेस कर रही है, तो उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. Right. Ehsan sir, you have obviously spent a lot of time in Ukraine and you've been living over there for a long time. आप एक तवील अरसा वहाँ पे गुजार चुके हैं, and you know कि how the problems have been, in our country and across the world, in fact, because pandemic was there. So this claustrophobic situation was found there, and people were really tensed. And in fact, most of the people lost their jobs, and students were really in this kind of a you can say turbulence. उनको बड़ी problems face करनी पड़ी. We had this online education system. We had this another issue कि भाई वो universities नहीं जा सकते. वो बहुत सारी चीजें obviously. There were many students who were going to get through their examination for the convocation, for the final convocation that they wanted. So there has been a lot of problems. There have been a lot of problems for the students. Having said that, sir, how do you see the situation, the current situation for students and for the people out there in Ukraine? अगर मैं उसकी बात करूं, so how do you see what are the chances in future for the students to come forward? क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि students had this thing on the mind कि जी they wanted to go abroad, they wanted to continue their study, they wanted to pursue their degrees from there, but obviously everything is stopped, the whole world stopped. But now it's getting better and better day by day, or you can say कि we have accepted it कि जी ये situation आ गई है और हमें इसको control करना है. So now this world has really embraced it. अब accept भी कर लिया, acceptance भी आ गई है, and with this we are moving forward. So कैसे देखते हैं सर आप future, और when it comes to obtaining jobs and when it comes to the fact कि वो अपनी studies को further pursue कर सकते हैं in Ukraine or in any part of the world? थैंक यू सर. आपके क्वेश्चन में 3-4 ऑप्शन मैं आपको बताता चला जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप. सर सबसे पहले तो ये कि ये बेसिकली जो कोविड-19 था, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में कोई भी ये सोच ही नहीं सकता था कि एक ऐसा भी टाइम आएगा कि पूरी दुनिया ही स्टॉप हो जाएगी. लेकिन ये सब नहीं देखा कि पूरी दुनिया ही बेसिकली स्टॉप हो गई जी. अब इसके बाद जितने भी सारी नेगेटिविटीज होती रही, फ्रस्ट्रेशंस होती रही लोगों में, बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से एम्प्लॉयज उनकी जॉब्स पे चले गए, बहुत से बिजनेस भी डाउन हो गए. अब तो जो मेन चीज़ है वो ये मेन चीज़ है कि बेसिकली हम लोगों ने उससे सर्वाइव कैसे करना है और हम लोगों ने उसको आगे मूव कैसे करना है कि अब तो किस तरह से उसका मूवमेंट है. अब सबसे अच्छा जो ज़बरदस्त एक पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, यूरोप में, पूरे यूरोप में मार्च और अप्रैल में बहुत ज़्यादा इसकी पीक रही है, बहुत ज़्यादा इसकी पीक रही है. राइट. उसके बाद तकरीबन अप्रैल में आके कुछ ओपनिंग होनी शुरू हुई और मई में आके सारा सिस्टम ओपन हो गया. जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो ये हुआ कि जब कोविड-19 का ये सारा प्रोसेस पीक पे चल रहा था तो बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था, किसी को लीव पे भेज दिया था. वो सिर्फ इस वजह से कि वो इकोनॉमी को बेसिकली इकोनॉमी, बिजनेस की इकोनॉमी सर्वाइव ही नहीं कर सकी. इतनी किसी की डिस्टर्ब्ड, इट वाज टू मच. तो अब एक नया ट्रेंड आ गया यहाँ पे रहते हुए. फॉर एग्जांपल वो नया ट्रेंड जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ, वो ट्रेंड अब क्या आ गया है कि जो पहले कंपनियां थी, जो डायरेक्टर्स उनके थे, कुछ तो बहुत रिच क्लास कंपनियां ऑफ कोर्स, वो सिर्फ बट दे आर ओनली 10%. अब जो कुछ ऐसी कंपनीज हैं
जो कि 90% ऐसी कंपनीज है जो बड़ी इकोनॉमिकल सिचुएशन में लिविंग कर रही थी, और अब वंस अगेन वो हायरिंग कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन में एक चीज आपने मुझे पूछी थी कि बेसिकली आपने किस तरह से इसको सारा स्टार्टअप किया। अब होता पहले क्या था, एक ट्रेंड बड़ा जबरदस्त चेंज हो गया है। पहले ये होता था, अगर पाकिस्तान से कोई बाहर मतलब जॉब करना चाहता था तो पहले उसको कोई वर्क परमिट लेना पड़ता था या कोई स्टडी इनविटेशन लेनी पड़ती थी, फिर उसको वीजा लगवाना पड़ता था, फिर वीजा जी। के बाद वो ट्रेवल करता था। ये तकरीबन को 3-4 महीने का टोटल प्रोसेस हो जाया करता था। हम्म। अब ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है। फास्ट वो कैसे हो गया? फास्ट ऐसे हो गया कि बहुत सारे जो कंपनीज हैं उनकी बहुत सारी जॉब्स उन्होंने अब ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। कुछ फ्रीलांसिंग पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं अपनी जॉब्स, कुछ उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। हम्म। और इससे पहले ये होता था कि बहुत कुछ स्पैम माना जाता था कि ऑनलाइन एजुकेशन शायद एक स्पैम है या ऑनलाइन जॉब एक स्पैम है। इस वक्त राइट नाउ 99% स्पैम नहीं हो रहा। जेन्युइन जॉब्स हैं, अच्छी एजुकेशन ऑफर्स हो रही हैं। हर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हर कंपनी सरवाइव करना चाह रही है इस वक्त। सही। तो इस वजह से मेरा उसमें सबसे पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैंने आपको करंट सिचुएशन बताई है कि ये जी। सिचुएशन है। अब उसमें जो सबसे पहले पॉजिटिव जो पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, और खासकर उसके बाद फिर हम आएंगे उन एम्प्लॉयज के ऊपर जिनकी जॉब्स चली गई हैं। हम्म। स्टूडेंट्स के पास सबसे अच्छा चांस ये है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबसे पहले स्टूडेंट्स को देखते हैं, तो स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा चांस ये है कि अब वो बेसिकली अपने ही सिटी में बैठकर अब वो बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में, या बेशक एक लाहौर का स्टूडेंट या एक किसी गांव में, फॉर एग्जांपल किसी भी गांव में, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अकाड़ा में बैठा हुआ है या कोई स्टूडेंट किसी भी सही। विलेज में बैठा हुआ है, तो वो भी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज में, फॉर एग्जांपल कराची की अच्छी हम्म। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर वो उसमें जो है ना बेसिकली उस एजुकेशन को गेन कर सकता है, बेशक वो एमसीएस है या वो बैचलर्स है या वो ये, या अगर वो चाहे तो बाहर के मुल्क में भी पढ़ सकता है। अब जी। उसमें सबसे पहले जो मैटर आता है वो कॉस्ट का आता है कि बाहर की एजुकेशन काफी कॉस्टली थी। अभी राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्पेशली यूरोप की यूनिवर्सिटीज ने अपनी तमाम ट्यूशन फीसिस को रिवाइज किया, और यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज ने भी ट्यूशन फीसिस को रिवाइज किया ताकि वो उनके इकोनॉमिकल हो सके, क्योंकि एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा जबरदस्त लेवल पे आके डिस्ट्रॉय हुई। तो लेकिन अब स्टूडेंट्स का टाइम ना जाया हो, तो स्टूडेंट्स हम्म। बेसिकली बहुत इकोनॉमिक चार्जेस के ऊपर बाहर की अच्छी यूनिवर्सिटीज में स्टडी कर सकते हैं। मैं किसी के एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का नाम या एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जस्ट आई एम टेलिंग द ओवरऑल सिचुएशन की ओवरऑल राइट। बेसिकली क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स बेसिकली अब उनके पास ये चांस है। जब मैं भी स्टूडेंट था 25 ईयर्स अगो, तो मेरे लिए भी एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाउ टू अचीव द एजुकेशन इन द अब्रॉड एंड किस तरह से ये सारा हो सकता है। लेकिन अब एक पॉजिटिवनेस आ गई है कोविड-19 के बाद के यू ऑटोमेटिकली ट्यूशन फीस, एक्सपेंसेस, कॉस्ट सब लेस हुआ कि एक आम कैंडिडेट भी बेसिकली बाहर की यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकता है। और क्योंकि एक ट्रेंड है, ऑफ कोर्स अब्रॉड की यूनिवर्सिटी हो तो एक और ट्रेंड है, या फिर एक एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी उसका एक और ट्रेंड है, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव हो गया ये एक प्रोसेस, राइट सर। कॉस्ट शांत साहब एक इफेक्टिव हो मुझे बात गया। बताइएगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया एंड इट्स वेरी गुड कि अब स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई ऑब्वियसली वहाँ पे कर सकते हैं, और इफ दे वांट टू परस्यू देयर गोल्स, इफ दे वांट टू परस्यू देयर डिग्री, दे कैन गो विद देयर एंड दे हैव दिस चांस कि अब फीस भी जो है उन्होंने काफ़ी कम कर दी है, लुकिंग एट दी एनवायरनमेंट, लुकिंग एट द सिचुएशन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं मोर स्पेसिफिकली यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन स्टूडेंट्स को हु वांट टू अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ डिग्री फ्रॉम यूक्रेन? किन आपको क्या लगता है कि किन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए यूक्रेन जो है वो बेस्ट है? यानी जी इंजीनियरिंग के लिए या एमबीए के लिए, मास्टर्स की डिग्री मतलब बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, या कोई भी प्रोग्राम हमारा जो होता है वो फैशन डिजाइनिंग के लिए अच्छा है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छा है, इंजीनियरिंग के लिए अच्छा है? क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सा कंट्री मेरे लिए अच्छा होगा, अच्छा रहेगा? सो कुड यू डिफाइन अबाउट दैट कि हाउ यूक्रेन इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल फॉर देम? जी सर, देखिए जो स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, हम्म। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, उनके हम्म। लिए तो बहुत अच्छा चांस है।
और उनसे भी ज़्यादा अच्छा चांस है एविएशंस वालों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम लेवल पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बहुत कम लेवल पे करवाई जी। जाती है। क्यों? बस हर कंट्री के अपने-अपने रिसोर्सेज़ होते हैं, कुछ होमवर्क्स होते हैं। तो उसमें यूक्रेन काफ़ी आगे है कि उसमें अब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना इंजीनियरिंग काफ़ी सालों से जो है ना उसके ऊपर इन्होंने एम्फसाइज़ किया। तो ख़ासकर वो लोग जो कि टेक्निकल स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए राइट। यूक्रेन एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि इनका बेसिकली जो थ्योरी है, थ्योरी बेसिकली इनकी यूक्रेन में होती है और इनके जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो भी यूक्रेन में होते हैं। इवन के जो स्टूडेंट्स फ्रांस में स्टडी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स स्वीडन में स्टडी कर रहे हैं, वो ये चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाके कि उनके प्रैक्टिकल्स यूक्रेन में होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इन्होंने बेसिकली अपनी एरोप्लेन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की जो है ना बेसिकली बड़ी-बड़ी जो है ना फैक्ट्रीज़, जेन्युइन फैक्ट्रीज़ जो डेमो दिखाते हैं, जेन्युइन बनते हुए सब चीज़ों को दिखाते हैं कि यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ कि वो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को, फर्स्ट सेमेस्टर से ले जाते हैं कि आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। अब वो बेसिकली क्या है, अब वो सारा ऑनलाइन हो गया है कि अब बेसिकली जो एरोनॉटिकल के जो कुछ बहुत सारी थ्योरी है वो तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन है ही है। तो अब वो जी। बेसिकली डायरेक्टली ऑनलाइन उसकी जो है ना बेसिकली प्रिपरेशन को दिखा रहे होते हैं कि ये इस तरह से कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने ये सिस्टम शुरू किया है कि उन्होंने जो है ना बेसिकली क्योंकि कुछ लेक्चर्स के लिए स्पेशली कुछ लेक्चर्स के लिए उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया है कि वो लेक्चर की डिलीवरी के लिए वो रन टाइम पे वो देख सकते हैं कि किस किस तरह से ये सारी एरोप्लेन इंजीनियरिंग काम करती है। और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग दैट्स वेरी बेस्ट, वो भी उसके लिए बेसिकली उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया हुआ है। तो उसके लिए जितनी जितनी जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पर वो सारा कुछ उसको सिस्टम को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। तो ये एक राइट। बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस है, ऑफ कोर्स हमारे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छी पॉजिटिवनेस है जिसको हम सिर्फ इंटरनेट पे कभी देखते थे, यूट्यूब पर हम लोग देखते थे या तस्वीरों में देखते थे, तो अब हम उसको लाइव देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक ही जगह पे बैठ के अपनी एजुकेशन को कंप्लीट भी कर सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। तो राइट। अच्छा, ये है एहसान बेसिकली साहब, डिफरेंस। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इफ़ दे वांट टू हैव दोज टेक्निकल डिग्रीज या इंजीनियरिंग की बात करें तो टेक्निकल साइड पे जो है दे कैन थिंक टू गो ओवर देयर। राइट। अच्छा, ये एक बात आप बताइएगा, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि भाई इकोनॉमी इस तरीके से हिट हो गई है और इट इज़ रियली गोइंग डाउन, सो फिगर्स आर नॉट अप टू द मार्क। सो हाउ डू यू डिफाइन द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री वेयर यू लिविंग? Has it really gone down, or you think it is going to boom, in the future? क्या देखते हैं आप और क्या डिफरेंस आपने अभी तक देखा है? What have you seen so far? बिल्कुल ठीक है। एहसन साहब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और इसीलिए आज हमारी ये लाइव इंटरव्यू चल रहा है। एक्चुअली जितना वो फ़ेसबुक पे या सोशल नेटवर्किंग्स पे, यूट्यूब पे या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी वो दिखाते हैं सारा कुछ, वो ये तो दिखाते हैं कि ऑफ कोर्स किस तरह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। हम्म। लेकिन ये नहीं बताते कि इस वक़्त राइट नाउ जितनी स्पीड से इकोनॉमी डाउन हुई थी उससे 100 टाइम इंक्रीज़िंग हो रही है। इस वक़्त इतनी स्पीड पे इस वक़्त काम चल रहा है कि वो अच्छा, इतनी तेज़ी से इस वक़्त बूम हो रहा है। मतलब ये तो तो आप पॉजिटिव साइड दिखा रहे हैं सर, which is very surprising to me. यस सर, दिस इज मैंने इस पे खुद ऑब्जर्व किया। आज मैं इसी इंटरव्यू में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें बताऊंगा कि जिसको चेक करेंगे तो हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो सिर्फ ये हम्म। सोचते रहते हैं कि शायद हमें कोई बुलाएगा, जॉब होगी, तो अब वो खुद जॉब कर सकते हैं बहुत सी ऐसी जगहों पे, क्योंकि इकोनॉमी पूरे सिर्फ अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो हम्म। अराउंडली तकरीबन 50 कंट्रीज तो सिर्फ यूरोप में ही आते हैं। तो यूरोप की जो इकोनॉमी बहुत तेजी से बूम हो रही है इस वक्त और इतनी तेजी से इन्होंने बूमिंग की तरफ जा रहे हैं। अब वो राइट। जा कैसे रहे हैं, दैट इज अ टेक्निकल थिंग कि वो जा कैसे रहे हैं। उसका जाने का तरीका ये है कि इन्होंने अब सारा कुछ बेसिकली जो है ना वेब एप्लीकेशंस के ऊपर और मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर इसको लॉन्च कर दिया है। वो हम्म। इस तरह से कि लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए या फिर डिजाइनर्स हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलपर्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं और इवन के नॉट प्रोफेशनल, इवन कि एक पर्सन जिसने सिर्फ जस्ट एक एफए या बी एजुकेशन गेन की हुई है तो वो भी अब इंग्लिश टीचर बन सकता है। तो इस वजह से सब लोगों को एक रेस्ट मिल गया था। अब वो रेस्ट, जाहिर सी बात है घरों में बैठ के सब लोगों ने रेस्ट किया, ये परेशानी तो सबको हुई। लेकिन अब जितनी तेजी से ये बूम ऊपर जा रहा है उतनी तेजी से ही जो है ना बेसिकली एक बहुत बड़ा कारवान, एक बहुत बड़ा काफिला चल पड़ा है। तो ये इसको चेक करें सारे स्टूडेंट्स, इसको चेक करें और मुख्तलिफ कंपनीज हैं
अभी हम इस डिटेल से इस टॉपिक पे आएंगे कि किस तरह से स्टूडेंट्स जॉब्स भी ले सकते हैं और अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, ताकि उनमें से ये फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो जाए। तो वो बहुत तेजी से बेसिकली जो है ना इकोनॉमी अब ऊपर जा रही है, और ज्यादातर जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको भी ये पता चल गया। पहले ये होता था कि 50 कंप्यूटर्स रखेंगे, 50 एम्प्लॉयज काम करेंगे। अब डायरेक्टर्स को भी पता चल गया कि हम 500 एम्प्लॉयज रख सकते हैं कि अगर वो अपने घरों में बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो ये हम्म। इस सिमत में, एग्जैक्ट इस सिमत में जा रहा है बेसिकली एहसान साहब, प्रोसेस। क्यों, क्या ये मैं कह सकता हूँ, या आप इस बारे में क्या बताएंगे कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इफ देयर आर पीपल हु रियली वांट टू वर्क ओवर देयर, हु वांट टू वर्क प्रोफेशनली ओवर देयर, सो इज इट इजी टू गेट अ जॉब ओवर देयर? अभी मतलब कुछ भी खैर हलवा तो नहीं होता है, इट इज नॉट दैट इजियर, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, या फ्यूचर में अभी होंगी अपॉर्चुनिटीज? आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट के इतने ज्यादा मसाइल पेश, देखें मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अभी मैं अभी वहाँ की बात कर रहा हूँ, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या कहेंगे आप अभी एम्प्लॉयमेंट को आप कैसे देखते हैं वहाँ पे? इफ समबडी वांट्स सर टू अप्लाई, इफ समबडी वांट्स टू हैव अ गुड जॉब, इफ समबडी हैज डन सम काइंड ऑफ डिग्री फ्रॉम देयर बीइंग इन यूक्रेन, क्या कहते हैं आप? जी सर, ये बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। उसका एक मेथड है। अब जॉब को लेने का भी मेथड चेंज हो गया हुआ है। हम्म। उसमें सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि जो भी कैंडिडेट्स, जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एम्प्लॉयज एक जॉब लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, सरवाइव करना चाहते हैं, हम्म। सबसे पहले अपना एक अच्छा और प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाइए। जी। उस प्रोफाइल के ऊपर आपका अपना पूरा नाम लिखा हो, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो, स्किल्स लिखी हुई हो कि आप कर सकते हैं, आप कंपनी को क्या सर्विसेज हैं जिसके बदले कंपनी आपको फॉर एग्जांपल सैलरी पे करती है, एक प्रॉपर प्रोफाइल हो। हम्म। अभी राइट नाउ जो यहाँ पर हो रहा है, मेरे अपने काफी मिलने वाले यहाँ पर यूरोप में दोस्त वगैरह हैं जो कि हमारे साथ कभी स्टूडेंट थे, नाउ दे आर बिजनेसमैन और जी। वर्किंग पे हैं वो सब लोग। दे आर आल्सो हायरिंग। तो इस तरह बहुत से लोग हायरिंग कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली फेसबुक के जेन्युइन प्रोफाइल्स या लिंक्डइन का जेन्युइन प्रोफाइल या एक प्रॉपर रिज्यूमे, हम्म। आपका रिज्यूमे डिटेल से होना चाहिए, 4 5 6 पेजेस का होना चाहिए रिज्यूमे, जिसमें आपकी टोटल डिटेल लिखी हो, अभी तक आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं और आप इसमें अब मजीद हमारी कंपनी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। और उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो भी इस वक्त करंटली सिचुएशन में डायरेक्टर्स हैं, जैसे ही उनके पास कोई सीवी आता है, वो फौरन जो नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है वो फौरन उस नंबर पे कॉल करते हैं। तो सो अगर आप जॉब लेना चाहते हैं कि यू शुड बी रेडी टू टॉक ऑनलाइन और टॉक ऑन जूम, टॉक ऑन एनीवेयर, किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप उनसे बात कर सकें कि मैं ये आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो सबसे पहले जो मेथड है ना वो चेंज करना पड़ेगा कि हाउ टू गेट अ राइटली जॉब। लेकिन एहसान मैं साहब, फिर एक बात मैं आपकी कतई कलामी कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि देन व्हाई देयर इज, मतलब मैं आपसे अभी जो सुन रहा हूँ, आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैं आपसे जो सुना, आप जो कह रहे हैं कि इस वक्त अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चांसेस भी हैं, पीपल कैन अप्लाई एंड दे आर हायरिंग द पीपल, एंड पीपल कैन वर्क फ्रॉम बीइंग एट होम, थ्रू बीइंग एट होम, एंड दिस इज व्हाट यू ऑल डिस्कस। सो सर, फिर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? फिर व्हाई दैट पेसिमिस्टिक अप्रोच इज फाउंड अमंग द पीपल कि भाई अभी इतना मसला हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी? क्या वो सिर्फ मोर स्पेसिफिकली हमारे मुल्क में हो रहा है, या कुछ और ममालिक में हो रहा है, या आप यूरोप के अंदर चूंकि आप हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, या आप मोर स्पेसिफिकली उस कंट्री की बात करें जहाँ आप इस वक्त रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, दैट्स यूक्रेन? सर वो नेगेटिविटी पता क्यों है? वो नेगेटिविटी आज की नहीं है। वो हम्म। नेगेटिविटी बहुत सालों की चल रही है, जब से ये एक ट्रेडिशनल लाइफ थी, वो एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। इट हम्म। वाज, बट इट इज नॉट राइट नाउ। अभी सारा डिजिटल हो गया हुआ है। अगर अच्छा। सिर्फ इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत हम्म। है, ओनली वन थिंग, इसको एक्सेप्ट कर लेते जो जो भी स्टूडेंट्स, जो जो भी एम्प्लॉयज इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नाउ एवरीथिंग हैज बीन गॉन डिजिटल। हम्म। डिजिटल हो चुका है हर चीज। मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म दैट कि पहले ये होता था बेसिकली कि एक सीवी भेजने के बाद इंतजार किया जाता था, जी। फिर वहां पे आंसर आता था, नहीं आंसर आता था, टाइम लगता था, फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेशन टाइप हो जाया करती थी। बट अब जो है ना सारा डिजिटल हो गया है। तो जिस दिन, बेशक आज, बेशक इस वीडियो के बाद, जो जो भी स्टूडेंट इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि नाउ एवरीथिंग हैज डन, एवरीथिंग हैज गॉन डिजिटल, और मैं इसका अब हिस्सा बनना चाहता हूँ, वो एक अपना हम्म। प्रोफाइल बनाए प्रॉपर प्रोफेशनल तौर पे और वो अप्लाई करे। मुख्तलिफ बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इस वक्त खासकर यूरोप के तो बहुत से कंट्री के अंदर इस वक्त जॉब्स ओपन हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी।
और इस फार्मूले को यूज करके देखिए, ये जेन्युइन फार्मूला है बिल्कुल, कि बस इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि वो पुराना टाइम अब वापस नहीं आएगा। इट इज 110% श्योर, वो पुराना टाइम वापस नहीं आएगा। नाउ एवरीथिंग इज न्यू। जब जब ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी स्टूडेंट्स को कि अब एक नया पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो देन इट हैज बीन डन, कि उस वक्त ये सारी अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। राइट। अब इस बात की क्या गारंटी है, अब देखें इस बात की क्या गारंटी है कि एक एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल बात करता हूं, फॉर एग्जांपल एक यूक्रेन की कंपनी है, वो क्यों लेगी पाकिस्तानी कैंडिडेट को? दिस इज द क्वेश्चन। वो क्यों लेगी पाकिस्तानी? अगर उनके सामने एक यूक्रेनियन कैंडिडेट आता है जॉब करने के लिए और एक तरफ से पाकिस्तानी कैंडिडेट आता है, तो वो क्यों लेगी? व्हाई दे विल टेक? ठीक है ना? वो इस वजह से लेंगे, जो लोकल लोग होते हैं ना, जो लोकल लोग होते हैं, बेशक वो पूरे यूरोप में है, ये लोग लेस सैलरीज के ऊपर काम नहीं करते, ये लोग सही। हाई सैलरीज पे काम करते हैं। दैट और इज जो वेरी कॉज, या। दैट इज द वेरी जेन्युइन रीजन। और जो हमारे हैं सिस्टर, जो हमारे एशियन सारे यूथ है, वो कुछ कम अमाउंट पर काम कर जाते हैं क्योंकि वहां पे ये कंपेरेटिव है। ट्रेंड नहीं है। तो इस वजह से अभी जितने भी सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स इन्होंने किसी तरह से सर्वाइवल करना है। तो उस सर्वाइवल की रीजन की वजह से आर दे आर हायरिंग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीकन्स। सो वो चाहते हैं कि ये लोग आके बेसिकली कम कंट्रीब्यूट करें। जो यही वो टाइम था जब किसी वक्त दुबई में बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, इंडियंस ने, बांग्लादेशियों ने जाके कम्युनिटीज बनाई और उन्होंने मौका भी दिया। तो ये था 1985 का, 1990 का टाइम था। बट आज 2020 में जितने भी यूरोपियंस हैं, इन्होंने सेम फार्मूला जो किसी वक्त यूएई वालों ने लिया था, आज यही फार्मूला इन्होंने ले लिया हुआ है कि राइट। ठीक है, अगर हम एशियन एम्प्लॉयज को हायर करते हैं तो इट विल बी इकोनॉमिकल फॉर आवर कंपनी। दिस Right. इज द Ehsan sir, जेन्युइन you've been रीजन। teaching over there for a long time, or obviously you have been the part of the university, and you've been teaching different students, and you have seen the environment over there of university. Let's talk about that. And मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि if you come, what have you felt so far by living over there, कि जो स्टाइल अडॉप्ट यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे किया हुआ है टीचिंग स्टाइल की, अगर मैं बात कर रहा हूँ या मैं कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, या आप समझ लीजिए कि मैं उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, उस कोर्स डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, विद द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, सो व्हाट मेजर डिफरेंस डू यू सी, what is the real difference that you see, which is found, which you think it should be implemented in our country too, in Pakistan too, which is not found? जी सर, उसमें देखें दो डिफरेंट चीजें हैं। Hmm. एक सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर एजुकेशन को हम कंपेयर करें ना, और स्पेशली हम एजुकेशन सिस्टम को हम लोग कंपेयर करें, जी तो जी। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इज वेरी गुड। अच्छा। मैंने पाकिस्तान से स्टडी किया, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। मैंने यूरोप में स्टडी किया, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम एक बहुत ही प्रोफेशनल सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूरोप का एजुकेशन सिस्टम कुछ लीनियंट है, लीनियंट है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हर टाइम स्टूडेंट्स को स्टडी करनी पड़ती है। स्टूडेंट्स अगर फेल हो जाते हैं, उनको वो कोर्स दोबारा स्टडी करनी पड़ती है, फिर वो दोबारा वंस अगेन एग्जाम देते हैं। ये वहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के स्टूडेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर इंसान को मजबूर रखता है वहाँ पे कि हम सही। लोगों ने वो हैव अ गोल और इस गोल को हमने अचीव करना है। हम्म। अब ये एक पॉजिटिव है पाकिस्तान के रेफरेंस से। अब बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पे लीनियंसी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका सेमेस्टर इस डेट को खत्म हो रहा है, अगर आप उसमें किसी वजह से एंटर नहीं हो पाते हैं, सेमेस्टर को जी। कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 2 महीने बाद एग्जाम्स दे दीजिए, 3 महीने बाद एग्जाम्स दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ठीक है किसी के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम थी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है ना कि स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बेसिकली क्या नाम है, अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि चलो ठीक है, हम फलां जगह पे चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन में जो है ना, इनके यूरोपियंस के पास अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, इन्होंने अभी तक कोई ऐसी बनाई नहीं है। वो लीनियंसी को कहते हैं ओके, इट्स ओके, लीनियंसी को कुछ कोई बात नहीं। बट दैट इज अ गुड पॉइंट कि कुछ लोग उसका बेनिफिट पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं। लेकिन अगर अब उसके रेफरेंस से अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे जो यूरोप में जो लेबोरेटरीज हैं, जो इनके पास कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, दैट इज अ वेरी हाईली कोर i7, कोर i9 और इसके अलावा इन्होंने सिस्को राउटर्स बड़े जबरदस्त लगाए हुए हैं। और अगर हम मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी जबरदस्त इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है। तो बहुत सारे कुछ ऐसे बेनिफिट्स, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह पे
ये नहीं अच्छा, कहता हूँ कि एहसान कोई साहब, आपने कंट्री बताया कि आइडियल है। लीनियंसी इज फाउंड ओवर देयर इन यूनिवर्सिटीज एंड व्हिच इज ठीक है, व्हिच इज फाइन, बट ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ कैसा रहा है? आर दे हाईली इंटेलेक्चुअल, आर दे हार्ड वर्किंग, और दे आर लाइक काइंड ऑफ पीपल हु आर स्टडीइंग ओवर देयर और हु हैव अराइव्ड ओवर देयर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट दे आर नॉट, मतलब कैसे आप उनको, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाउ डू यू रेट देम, हाउ डू यू सी देम? सर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के साथ तो काम करने का बहुत अच्छा लगता है, उन लोगों के साथ काम करने का जो कि सिंसियर होते हैं, उस लीनियंसी को पॉजिटिवली लीनियंसी उस पे काम करते रहते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता उनके ऊपर कि वो काम करना है। ठीक है, अगर एक असाइनमेंट 10 दिनों में या 20 दिनों में कंप्लीट नहीं हो सकी है तो वो उनको ज्यादा टाइम मिल जाता है उसमें, तो दिस इज वेरी गुड। लेकिन उसमें ना सिस्टम एक और भी होता है कि बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, चलो जहाँ ये लीनियंसी मिल रही है ना, 2 महीने और ले लेते हैं, 4 महीने और ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि पूरा पूरा साल ही ज़ाया हो जाता है उनका। तो उसमें मेरा जो है ना स्टूडेंट्स के साथ मैं अक्सर उनको हमेशा सबको यही समझाता रहता हूँ कि जो टाइम है ना, इट विल नॉट कम बैक, इसको अपने बेनिफिट के लिए आप, इसको अपने पॉजिटिव बेनिफिट्स के लिए आप यूज कर लें। तो वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छी एजुकेशन पढ़ने आते हैं, उनके अपने गोल्स होते हैं कि 2 साल मैंने ये स्टडी करनी है या 4 साल मैंने स्टडी करनी है, उसके बाद मैंने फलां जगह शिफ्ट होना है, या मैंने अपने पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आते हैं वापस जाना है। तो ऑफ कोर्स उनके साथ काम करने का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिविटी और भी आती है बहुत अच्छी, वो ये कि बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि बाज़ कहीं-कहीं पे अपनी स्टडी में सीरियस नहीं भी होते हैं, लेकिन वो जब इतना अच्छा एनवायरनमेंट देखते हैं तो वो उनका भी दिल चाहता है कि हम बाहर की अब आ ही चुके हैं स्टडी करने, तो अब हम भी स्टडी करें। और फिर उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अपने मुल्कों में वापस जाते हैं, तो कोई डॉक्टर का क्लिनिक खोलता है, कोई इंजीनियरिंग की कंपनी खोलता है, कोई लॉयर बन के जाता है। तो इस तरह से बेसिकली एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वो एक दूसरे को देखा-देखी भी जो है ना, लोग बेसिकली एजुकेशन गेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाज़ लोग होते हैं कि वो एक दूसरे को देखा-देखी भी नहीं गेन करना शुरू करते, तो फिर ऑफ कोर्स उनके लिए सक्सेस गेन करना मुश्किल हो जाता है, तो उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो अच्छा, जाता एहसान है। साहब, ये बताइएगा कि स्कॉलरशिप की प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं, वो कैसा सिलसिला है वहाँ पे? और दूसरी बात ये कि हाउ डू यू सी द फी स्ट्रक्चर ओवर देयर, मतलब इज इट रादर एक्सपेंसिव, इज इट अफोर्डेबल, सो हाउ डू यू डिफाइन दैट? जी सर। अब बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मैं एग्जैक्ट फिगर्स पे बात कर रहा हूँ इस वक्त, कि फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी की फीस फॉर एग्जांपल 2000 यूएसडी थी, अब वो उसी यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एजुकेशन को लॉन्च किया और उस यूनिवर्सिटी की फीस बहुत इकोनॉमिकल कर दिया, उसको उन्होंने फॉर एग्जांपल 1000 यूएसडी कर दिया। राइट। तो इस वजह से बेसिकली वो स्कॉलरशिप तो उनके लिए ऑटोमेटिकली बन गई। लेकिन बेसिकली अभी तक राइट नाउ हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, जो हम, क्योंकि बेसिकली आई एम आल्सो द मेंबर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोर्ड्स पीपल, तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जब से ये कोविड-19 का प्रोसेस हुआ है कि इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटी शायद स्कॉलरशिप्स दे सके। लेकिन लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉजिटिव दिया है कि स्टूडेंट्स की जो फीस को कम कर दिया ताकि सारे स्टूडेंट्स उसको स्टडी कर सकें। तो ये राइट। इस लेवल पे जो है ना वो कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है। Right. Ehsan Saab, we always talk about the fact that you really need to explore yourself. You know, if I'm talking about a new student who has just started out his life, or he has just completed some kind of, like उसने अभी बस start लेना है किसी degree का, he wants to start his bachelor's, he wants to start, normally खैर bachelor's की बात कर लेते हैं, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई, हम हमेशा ये हमने लोगों को भी कहते हुए सुना है कि you need to explore your area of interest, you need to see कि what you are interested in, what you want to do in your life, this is what is very important, क्योंकि मैं अक्सर ये बात डिस्कस करता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो काम कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं, बट डिस्पाइट दैट दे आर हैविंग टू डू दैट, दे हैव टू डू इट बिकॉज आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपल्जन। बट हकीकत ये है कि आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है, एक स्टूडेंट को अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है कि व्हाट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सर, आप क्या कहते हैं, व्हाट एडवाइस कैन यू सजेस्ट टू द पीपल आउट देयर हु आर लिसनिंग टू यू, कि वो किस तरीके से पर्टिकुलर फील्ड को या अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये कितना ज़रूरी है कि आप अपनी ही फील्ड में जाएं जो आप करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि एक शख्स जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो 2 साल के बाद जो है, he moves on from there to some other field. Why? Because he thinks that he was not doing well, which is not bad, because you have just moved on from one course to another course, one program to another program. But I think बहुत ज़रूरी होता है ना कि आप अपने इंटरेस्ट को तो देखें कि आप करना क्या चाहते हैं. What would you like to suggest about that? देखिए सर, एक तो सबसे पहले जो है ना, इसमें प्रोसेस जो होता है स्कैटरिंग, Hmm. माइंड को स्कैटर नहीं करना चाहिए, नंबर Mm-hmm. 1।
कोई कैंडिडेट अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आना चाहता है या लॉयर की फील्ड में जाना चाहता है या मेडिकल में जाना चाहता है या जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, सिर्फ उसके ऊपर डिटेल से टोटली उसकी तमाम चीज़ों को पूरा करना चाहिए। तमाम चीज़ों को उसकी तमाम उसके वीडियो लेसन्स देखिए, उसकी बेसिकली गूगल से इंफॉर्मेशन लीजिए, विकिपीडिया से, जिससे भी एक्स वाई जेड, लेकिन Mhm. उसके ऊपर टोटली अटेंशन नहीं चाहिए, सिर्फ उसके ऊपर। अब होता क्या है, ये एक लॉ है बेसिकली, एक यूनिवर्सल लॉ है कि जब परेशानी आनी शुरू हो जाती है, कहीं मुश्किल आनी शुरू हो जाती है किसी सब्जेक्ट पे काम करते हुए, कंप्यूटर साइंस पे या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आनी शुरू हो जाती है, Mhm. वहीं पर हम उसको स्किप कर जाते हैं। दिस इज द बिग मिस्टेक, ये नहीं करनी चाहिए। कि जब आप एक चीज पे चल रहे हैं ना, तो उसकी तमाम चीजों को पूरा करें, कि उस सब्जेक्ट को भी अच्छी तरह से स्टडी करें और आपको उसके पॉजिटिविटीज नेगेटिविटीज हर चीज को पूरी तरह से उसको क्लियर करें, उसको स्टडी करते रहिए और उसी के ऊपर काम करें। क्योंकि बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि 2 साल एक जॉब कर रहे थे, 2 साल या एक स्टडी कर रहे थे, उसके बाद उसको चेंज हो गए कि ओह ये मेरा तो इंटरेस्ट ऐसा नहीं था। तो पहले उस इंटरेस्ट को उसमें डेवलप कर लीजिए और Mhm. उसको विजुअलाइज कर लीजिए। Very true. हमारी इस यूनिवर्स में एक पावर है कि जैसा हम सोच रहे होते हैं वैसा हम हो जाते हैं। तो उसको Very विजुअलाइज true. कर लीजिए कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू Mhm. बिकम एन इंजीनियर। उसको विजुअलाइज कर लीजिए और उसमें जिंदगी को गुजारना शुरू करें, तो ऑटोमेटिकली इस यूनिवर्स की पावर आपको वो चीज ला कर देना शुरू कर देती है। तो किसी भी स्टूडेंट ने जो फैकल्टी डिसाइड कर ली है कि नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि किसी फ्रेंड ने, किसी नेबर ने या किसी एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन ने ये कह दिया Mhm. कि बेसिकली इसको ना करो, इसका ये फायदा नहीं है, ये इसका ये नुकसान होगा, नहीं। फिर Mhm. जब आपने वो डिसाइड कर लिया तो यू हैव टू डू दैट, उसको फिर पूरा कंप्लीट करना है। जो मुश्किलात आए उसके डिसीजंस देखने पड़ते हैं। और आजकल तो वैसे भी बहुत आसानी है। हमारे टाइम पे तो ये नहीं होती थी इतनी आसानी, कि अब तो बहुत सा सोशल नेटवर्किंग आ चुकी हुई है Mhm. और गूगल एक बहुत बड़ा टीचर है इस वक्त। गूगल पे हर चीज बिल्कुल। मिल जाती है कि नहीं। और काफी ऐसी साइट्स बन गई हैं जिसके ऊपर इंग्लिश में मटेरियल लिखा हुआ है और बहुत से वीडियो लेक्चर्स बन गए हैं। तो बस उस फील्ड को मत छोड़िए, टाइम लगता है, लगने दीजिए। बस एक पॉइंट को याद रखें कि जब आपको मुश्किल आना शुरू करे, मुश्किल आए, तो उसको वहां पे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन Mhm. अपनी फील्ड को चेंज ना कीजिए, वो फील्ड को मत चेंज कीजिए। दैट इज द Right. एग्जामिनेशन। ये हर बंदे का एग्जाम है, ये हमारा Mhm. भी था, हमारे बाद भी लोगों का होगा और हमसे पहले भी इसी तरह से था। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, उसको चेंज ना करें, जो भी डिफाइन करें और उसको प्योरली डिफाइन करके उसकी तमाम चीजों को कंप्लीट कीजिए, Right. एंड यू Ehsan विल बी sir, सक्सेसफुल। any last message you would like to give to the people out there who are listening to you? Yeah, anything that you haven't spoken, yeah, anything that I haven't asked you. So what would you like to say, sir? सर, मैं इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने जो भी मेरे यूथ इस वक्त सुन रही है, यंगस्टर ये सुन रहे हैं, एम्प्लॉयज ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप पॉजिटिव रहें। जो काम आप करना चाहते हैं उसको पॉजिटिव रखें। जो आइडियाज मैंने आज आपको बताए हैं आप उन पे काम कीजिए। प्रॉपर Mhm. रिज्यूमे बनाइए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, प्रॉपर अप्लाई कीजिए और उसमें रेडी रहिए। कोई भी टेस्ट, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि कहते हैं कि आपने जॉब ज्वाइन करनी है तो कोई टेस्ट देने के लिए भी रेडी रहिए। तो बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिविटी जो है बेसिकली वो आपको आगे लेकर जाएगी। और ये इस वक्त करंटली यहाँ पर हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली वो लोगों की बातें सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा ना Mhm. कीजिए, ये आप अपना भी नुकसान करते हैं। दूसरे के पास तो टाइम है, ठीक है, इट्स ओके, वो तो टाइम से कोई भी बात कर जाते हैं। तो आप Mhm. सिर्फ ये सोचिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली। Mhm. पॉजिटिव पॉइंट्स भी तो हर मुल्क में हो रहे हैं। और ये बेसिकली इस वक्त जितनी भी नेट पे जो भी काम हो रहा है, ये 90% 99% स्पैमिंग नहीं हो रही है। बहुत सारी कंपनीज हायर कर रही हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज चांसेस दे रही हैं। तो आप लोग इस चांसेस को अवेल कीजिए प्रॉपर प्रोफाइल के थ्रू और एक फील्ड डिसाइड कर लीजिए, वन ओनली वन। आपने लालच नहीं करनी है, ग्रिडनेस नहीं आनी चाहिए। सिर्फ Mhm. एक फील्ड डिफाइन कीजिए कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल के डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूं तो आई विल डू ओनली वन थिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट राइटर हूं तो आई विल बी ओनली कंटेंट राइटर। ओनली वन, एक चीज डिफाइन कीजिए और उसी के ऊपर चलिए, वहीं पर कामयाबी मिल जाएगी। दिस इज द राइट। आखिर मोस्ट में इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बिल्कुल सही एहसान साहब, आखिर में मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वी रियली वांटेड टू शो यू द अदर साइड ऑफ द स्टोरी टू, द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। और आपको ये पता लगे कि
दुनिया में और मज़ीद दूसरे लोग जो रह रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। जैसे एहसान साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव बातें की हैं और बहुत पॉजिटिव साइड दिखाया है हमें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड। एंड हम जो कुछ सुन रहे होते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम नेगेटिविटीज़ की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लग जाता है कि नाउ सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज़ जस्ट गोइंग टू बी द सेम एज इट वाज बिफोर। So the point is, what is the takeaway is that things really are going to change, and they have changed, and things are really evolving. And the whole world, I think, has really accepted this reality that this is where we are now. And जो pandemic आया, जो हालात ख़राब हुए, जो चीज़ें हुई, now we all have accepted that we have to go through with it, और हमें इसी के अंदर रहते हुए इसी के साथ ही अपनी प्लानिंग को मज़ीद आगे लेके चलना है। बिकॉज कुछ भी हो जाए, हालात ज़रूर बदलते हैं और चीज़ें कभी भी कहीं नहीं रुकती हैं, ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। इट मस्ट गो ऑन, सो योर लाइफ ऑल्सो मस्ट गो ऑन। एंड थैंक यू सो मच एहसान साहब। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वॉज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर कि जितने लोगों ने सुना है, देखा है, उन्होंने आपकी बातों को समझा होगा, जाना होगा, और वो ज़रूर अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कोई भी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, सो दे मस्ट कम ओवर देयर, और यकीनन वो अपने गोल्स को परस्यू करेंगे। और एहसान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑन बिहाफ ऑफ So इंडस nice. यूनिवर्सिटी, आई रियली वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, एंड आई रियली वांट टू wish you the best of luck for your future projects. So nice of you. Thank you एहसान साहब, बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस यूनिवर्सिटी कि आज मौका दिया। और वेरी मच थैंक यू। सो नाइस, बहुत Thank you so शुक्रिया, much, sir. बहुत Take शुक्रिया care. सर। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज, अल्लाह हाफिज।